one other cross we will also discuss, and in our syllabus it is the test cross. Okay, so let us know about the test cross. So the result of monohybrid, dihybrid, trihybrid, in all cases the result in F1 generation is similar, that is heterozygous condition. Okay, heterozygous dominant trait, जो भी dominant trait था उसी का heterozygous condition obtained हो रहा है F1 generation में. But in F2 generation the ratio becomes changed. Okay, in the case of monohybrid cross, the ratio which was discussed in yesterday, it was phenotype as 3:1, that is 3 of tall plant while 1 of the dwarf plant, or we can say that commonly as 3 as dominant trait while 1 as recessive trait. But the genotype, it is 1:2:1. That means out of 4, 1 is the tall, 1 is tall, 2 is also tall, and here 1 is the dwarf. ये 4 जो रिजल्ट हमको दिखाई दिए, उन 4 में से 2 जो दिख रहे हैं that are tall, 2 proportion जीनोटाइप, और ये दोनों tall हैं. So phenotypically how can we classify it, or how can we identify from externally as about the plant that which one is the pure tall and which one is the impure tall, pure and impure. So to check the genotype of unknown, यहाँ पे जो ये दोनों दिख रहे हैं, दोनों बाहर से देखने पे क्या है, both appears as tall plant, but we cannot understand the genotype of both kind of plant, that is the plant of capital T or plant of capital T and small t. So in this way, or in such situation, we have a problem to select the homozygous or heterozygous condition of the plant externally. And to resolve this problem, there is a solution, that is the test cross. ये solution जो है वो है test cross. It means test cross is done to find the genotype of unknown. The purpose of test cross, it is to find the genotype of unknown offspring. जो भी offspring हमको मिला है उसमें से unknown को find out करने के लिए, जैसे यहाँ पे ये दोनों जो है we cannot find out or we cannot observe any kind of character to distinguish between these two plant, that is homozygous tall or heterozygous tall. यहाँ तो हम लोग लिख दिए, but externally plant को देखकर we cannot observe. So in such situation there is a single technique we can use to find out whether the tall plant is having capital T or having capital T small t. दोनों टाल प्लांट में से कौन से टाल प्लांट के पास कैपिटल टी वाला जीनोटाइप है और कौन से के पास
कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जीनोटाइप है, इसको फाइंड आउट करने के लिए फिजिकली वी हैव अ मेथड दैट इज टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में होता क्या है, कैसे हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। So method of test cross, the method involve the cross between unknown and recessive. The cross between unknown and recessive, it give the result which help to test the unknown character और unknown trait। unknown trait को find out करने के लिए हमको उस unknown trait और unknown plant और recessive plant के बीच में क्रॉस कराना होगा। क्योंकि देखिए रिसेसिव जो होता है वो ऑलवेज किस कंडीशन में होता है, होमोजाइगस कंडीशन में होता है। रिसेसिव नॉट फाउंड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, सो मीन्स कैन नॉट रिप्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। सो ये तो श्योर है कि जब वो रिप्रेजेंट होगा कोई भी प्लांट अगर रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहा है, मीन्स देयर जीनोटाइप हैज अ सिंगल पॉसिबिलिटी दैट इज द होमोजाइगस कंडीशन। अब यहाँ से आपको क्लियर होगा, there are three situation, capital T, capital T, capital T, small t, and small t, small t. There are three such situation in F2 generation, and we have problems externally to find out that whether the plant is of capital T or capital T small t. So in such situation the cross taken place। और उसके अलावा जो है हम इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो जनरली क्या होता है, होमोजाइगस कंडीशन में ही रिसेसिव अपीयर होता है। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? हेलो सर, आ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इन तीनों ही कंडीशन को चेक करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। मान लीजिए तीनों ही अननोन है, वैसे तो स्पेशली ये दोनों जो है अननोन होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस करना जो है पॉसिबल नहीं होता है एक्सटर्नली। बट इस केस में क्या होता है कि हम लोग आगे जानते हैं कि रिसेसिव ट्रेट जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपीयर नहीं होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट से हम रिसेसिव ट्रेट तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि वो दिखाई देता है, रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में दिखाई देता है। तो टेस्ट क्रॉस करेंगे कैसे? टेस्ट क्रॉस में हमको करना क्या होता है, अननोन एंड रिसेसिव ट्रेट को लेकर क्रॉस करना होता है। तो इसका भी स्मॉल टी से, इसका भी क्रॉस स्मॉल टी से, एंड इट इज आल्सो विथ स्मॉल टी। ओके, स्मॉल टी जो है रिसेसिव ट्रेट को शो कर रहा है, तो सभी केस में सभी को हम रिसेसिव ट्रेट से क्रॉस कराएंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जो रिसेसिव ट्रेट से क्रॉस कराते हैं तो क्या दिखाई देता है। पुनेट स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। So here we can use capital T, and here is small t and small t। तो ऐसे में जो रिजल्ट हमको मिलेगा दैट इज कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। और दूसरे सिचुएशन में क्या रिजल्ट दिख रहा है, दैट इज कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t, स्मॉल t।
So we have capital T small t, capital T small t, small t small t, small t small t. Okay, and here we have small t small t, small t small t, and the result will be small t small t, small t small t, small t small t. So we have such kind of result find out after the टेस्ट क्लास. और जब इनका हम रेशियो क्रिएट करेंगे तो रेशियो से हमको क्या फाइंड होगा कि रेशियो जो है सब में डिफर कर रहा है. कैसे रेशियो डिफर कर रहा है? तो यहाँ पे जो रिजल्ट हमको दिखाई दिया दैट इज जस्ट एज द F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. और F1 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइप होता है दैट इज, और रेशियो जो बोला जाए so 4:0. Here the ratio is 4:0, and in second case the ratio is 2:2, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है दो जो है हेट्रोजाइगस, दो टाल होंगे और दो क्या होंगे, ड्वार्फ होंगे. और यहाँ पे सभी क्या है, टाल दिख रहे हैं. और थर्ड सिचुएशन में रेशियो क्या दिख रहा है, 0:4. दैट इज जितने भी दिख रहे हैं वो सभी ड्वार्फ दिख रहे हैं, टाल कोई नहीं दिख रहा है. तो ये जो रेशियो है यही रेशियो रिजल्ट क्रिएट करता है दैट इज विच वन इज द प्योर टाल, विच वन इज द प्योर ड्वार्फ एंड विच वन इज द हेट्रोजाइगस टाल. कौन सा हेट्रोजाइगस टाल है, कौन सा हेट्रोजाइगस होमोजाइगस टाल है और कौन सा होमोजाइगस रिसेसिव है, ये टेस्ट क्रॉस इस रेशियो से हम लोग कंक्लूड करेंगे. तो यहाँ क्या दिख रहा है कि जब रेशियो हमको 4:0 दिखाई देगा इट मीन्स the unknown is what, the homozygous tall. In the case of unknown homozygous tall, the ratio we obtained it is the 4:0. While in the case of the unknown that is heterozygous tall, जब heterozygous tall जो है unknown character होगा, in such situation we obtain the ratio as 2:1, or we can say it is 1:1. इसी को हम 1:1 भी बोल सकते हैं. While in third situation when the ratio will be 0:4, it represents the unknown, it is the homozygous recessive. तो जो unknown होगा वो होगा homozygous recessive. ये क्लियर है टेस्ट क्रॉस. हेलो, यस सर. ओके. तो टेस्ट क्रॉस जो है हम इसीलिए करते हैं टू फाइंड आउट द अननोन ट्रेट. अननोन ट्रेट जो भी होता है उसको हम फिजिकली चेक करने के लिए टेस्ट क्रॉस करते हैं. सो आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इट इज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. जो अगला टॉपिक हमको पढ़ना है दैट इज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. Law of inheritance, or in other words we can say it is the Mendel's law. It is also known as Mendel's law because first of all Mendel was created this law to explain how the transfer of, or what are the principle behind the transfer of gene from one generation to another generation. जैसा कि हम लोग डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, इन द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स इन्वॉल्व द study of inheritance and variation. And inheritance can be defined as the transfer of
character from parent to their offspring. So how or what are the rules behind the transfer of character from parent to their offspring? That law or that principle are known as law of inheritance. और मेंडल जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऑब्जर्व किए थे, सो इट इज आल्सो नोन एज मेंडल्स लॉ. So in class 10th you have also studied about the three law which was developed or created by Mendel's after the experiment on pea plant. pea plant के एक्सपेरिमेंट के ऊपर बाद जो कंक्लूजन उनको निकला, उसी कंक्लूजन से उन्होंने मेंडल्स लॉ को क्रिएट किया था. सो जो मेंडल्स लॉ है ये आपका है लॉ ऑफ डोमिनेंस, law of segregation, law of independent assortment. सो वन बाय वन इन तीनों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. तो बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की. What is meant for law of dominance? So law of dominance can be find out with the help of with the help of all the crosses, that is monohybrid, dihybrid and trihybrid. Law of dominance is applied in all cases, monohybrid, dihybrid and trihybrid. But the law of dominance and law of segregation can be find out with the help of monohybrid cross. And this law states that if we start with pure line, if we start with pure line, प्योर लाइन मीन्स जो है क्लियर ही है, आपको टर्म में क्लियर कराया गया था कि प्योर लाइन क्या होता है. Yes, sir. जो होमोजाइगस कंडीशन होता है उसी को हम प्योर लाइन बोलते हैं, पेरेंटल जनरेशन. सो इफ वी स्टार्ट विद द प्योर लाइन इन फर्स्ट जनरेशन द रिजल्ट इट इज द ऑब्जर्व एज द कैरेक्टर in first generation. The character expressed, it is dominant. जब हम जो है प्योर लाइन को लेकर के क्रॉस स्टार्ट करते हैं या एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, so in such situation the first generation रिजल्ट किस फॉर्म में अपीयर होता है? इन द फॉर्म ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर. मीन्स आउट ऑफ टू, वन ऑफ द पेरेंट्स or the character of only one parents appear in the first generation, and that character or that trait it is known as the dominant trait, while the other which cannot express itself it is known as recessive trait. Okay, जैसा कि हम लोग जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ऑब्जर्व कर चुके हैं, दैट टाल प्लांट को लेकर के जब क्रॉस कराया गया ड्वार्फ से सिंगल कैरेक्टर, तो ऐसे में गैमेट जो बना कैपिटल टी एंड हियर स्मॉल टी. एंड आफ्टर डूइंग द पुनेट स्क्वायर मेथड, cross by Punnett square method, so we can find out such kind of situation in F1 generation. This is the parental and this one is the F1, and in F1 all the offspring when
grow or grew, it was tall. It was like tall parent. मीन्स जैसा टाल पेरेंट का कैरेक्टर था वही सेम कैरेक्टर जो है ऑफ स्प्रिंग सीड को जब ग्रो कराया गया तो वो जब प्लांट बड़े प्लांट में मैच्योर प्लांट में डेवलप हुआ तो वो मैच्योर प्लांट किससे रिजेंबल किया? फ्रॉम द वन ऑफ द पेरेंट विच वॉज टाल पेरेंट से जो है रिजेंबल किया। तो ऐसे में इसको बोल दिया गया दैट इज डोमिनेंट ट्रेट। And other which cannot represent itself in F1 generation, it was called as recessive trait by Mendel. And no one of the trait appear or no one offspring appear in between two parents. दोनों पेरेंट्स के बीच का, दोनों कैरेक्टर के बीच का कोई कैरेक्टर नहीं दिखाई दिया। दोनों में से कोई एक कैरेक्टर किसी एक पेरेंट के कैरेक्टर से ये रिजेंबल किया, सिमिलर दिखाई दिया। तो ऐसे में जिस पेरेंट के कैरेक्टर को ये शो कर रहा है उस कैरेक्टर को हम डोमिनेंट कैरेक्टर और डोमिनेंट ट्रेट बोल दिए, और जिसको जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है उसको बोल दिए रिसेसिव ट्रेट। एंड दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी को बोला गया लॉ ऑफ डोमिनेंस।